Hello students, welcome back. Today we shall be starting off with various environmental factors. The environmental factors which affects the population, the environmental factors which affects the ecosystem. Right? So the constituents of the environment which directly, the components of the environment which directly or indirectly, whether it could affect directly or वो indirectly भी affect कर सकता है, influences what? The form and functioning of the organism, the types of organism, the functioning of the organism in any of a given way, are termed to be as ecological factors or also termed to be as the environmental factors. So what are basically environmental factors? ऐसे कोई भी constituent जो directly या indirectly किसी भी organism के function को या उसके form को affect कर सकता है, फाइन, उसके habitat को या फिर उसकी सारी जो methods होती हैं, फाइन, moving, eating, जो सारी जो चीज़ें होती है उसको affect कर सकता है, तो वैसे factors को हम बोलेंगे ecological या environmental factors. वो दो तरह के होते हैं जो हमें पता होता है. फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं अबायोटिक, दूसरे होते हैं बायोटिक. बायोटिक मतलब में लिविंग कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. सो बेसिकली इन दिस चैप्टर आवर फोकस इज ऑन दी अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट व्हिच अफेक्ट्स द फॉर्म एंड फंक्शनिंग ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिज्म. फाइन. सबसे पहले मेजर अबायोटिक जो फैक्टर्स हैं, जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से हैं? तो टेम्परेचर है, समझ लो, वाटर है, लाइट है, सॉइल है, जिसकी वजह से कैसे ऑर्गेनिजम्स उधर होंगे, कैसा वेजिटेशन उधर होगा, उनकी कौन कौन सी टेक्निक एनिमल्स को कैसे वो अफेक्ट कर सकता है, तो वो फैक्टर्स हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले है टेम्परेचर. जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर जैसे कि दिस इज द फर्स्ट अबायोटिक फैक्टर, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. फाइन. टेम्परेचर और द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. टेम्परेचर क्या होता है? मतलब में डिग्री ऑफ हॉटनेस, कितनी गर्मी है या कितनी ठंडी है, तो उसे हम बोलेंगे टेम्परेचर. द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज द मोस्ट रिलेवेंट एनवायरमेंट फैक्टर. सबसे ज़्यादा अफेक्ट करने वाली जो फैक्टर है वो होती है टेम्परेचर. कितना हॉटनेस है, कितना कोल्डनेस है. एवरेज टेम्परेचर वेरीज सीजनली एवरेज टेम्परेचर क्या करता है? वेरी करता है. दैट इज at every place the average temperature varies according to the season. So basically if we talk about the location, it depends upon the location, the topography of the place also. Fine. In some region it could be sub-zero in polar areas, that is it could be zero से भी नीचे होता है. Fine. And even in the high altitudes, the area which are at high altitudes that is more than 50 degrees centigrade in the tropical desert in the summer. So 50 डिग्री से ज़्यादा भी हो सकता है, जीरो से माइनस में भी हो सकता है, depending on the location. So the degree of hotness and coldness is termed to be as nothing but the temperature. Average temperature seasonally change होता है. Thermal springs हैं, deep sea है, deep sea hydrothermal areas जो होते हैं, springs होते हैं, deep sea में जो hydrothermal वो होती हैं, उधर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा हो सकता है टेम्परेचर. फाइन. Similarly, moving ahead and talking about the type of the organism based on this, there are two types of organism according to the temperature. That is, one is eurythermal organisms and the another one are stenothermal organisms. So when we talk about the eurythermal organisms, those organisms which can tolerate a wide range of temperature variations. जो मतलब में ऐसे organisms जो wide range of temperature को tolerate कर सकते हैं. फाइन. मतलब में they are found in the extreme like cold areas, hot areas. Fine. So those are termed to be as eurythermal animals, those organisms which can tolerate a wide range of temperature variation. जैसे कि हम बात करें mammals की, birds की, तो वे वैसे होते हैं, तो wide range of temperature को खुद से वो एक्सेप्ट कर सकते हैं और दे कैन सर्वाइव. फाइन. दोज आर टर्म टू बी एज यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स. सिमिलरली जैसे हम बात करें उसके एक एग्जाम्पल की, जैसे हम बात करें तो प्लांट की एग्जाम्पल जो हमें बुक में दी गई है, तो दैट इज आर्टेमिशिया. दिस इज आर्टेमिशिया ट्रिडेंशिया. तो वो क्या है? एक प्लांट की टाइप है. इट बिलोंग्स टू द फैमिली एस्टेरियसी विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म विच कुड सर्वाइव इन एक्सट्रीम्स ऑफ बोथ. ऑन द कॉन्ट्ररी व्हेन वी टर्म द स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म, स्टेनोथर्मल मतलब में, स्टेनो मतलब में लिमिटेड. सो दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन लिव विद इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, वो ज़्यादा लाइक गिवन रेंज जो होती है उनकी, उसमें ही सर्वाइव कर सकते हैं. जैसे कि वो सर्वाइव करते हैं, समझ लो 0 to 10, 0 to 10, 0 to 15 में वो सर्वाइव कर सकते हैं. फिर आपको उसको माइनस में भेजोगे या 15 से ज़्यादा में भेजोगे तो वे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. तो दैट इज दे कैन सर्वाइव इन अ लिमिटेड रेंज इन विच दे आर सर्वाइविंग.
are termed to be as stenothermal organisms. So those organisms which can live within a narrow range of temperature because of their requirement of nearly constant temperature. They basically require a constant temperature in a given range throughout the year. For example, polar bears हैं, lizards हैं, amphibians हैं, वे वगैरह उनकी जो temperature range होती है उनमें ही survive कर सकती है. So based on temperature we have two types of organism important, eurythermal and stenothermal. Moving ahead with the next one, that is जब हम बात करेंगे इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स की, सपोज हम बात करते हैं तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि ह्यूमंस हैं तो उनकी बात करें तो दिस आर सम ऑफ द एग्जांपल्स व्हिच आर बेस्ड ऑन टेम्परेचर. फाइन. सो व्हाट एम आई टीचिंग यू राइट नाउ इज हाउ डू टेम्परेचर अफेक्ट्स द ऑर्गेनिज्म. फाइन. इन विच वे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड सो ऑन. सो इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स की जब हम बात करें जैसे कि ह्यूमंस हैं तो पिगमेंटेशन इज लिटिल इन कोल्डर एरियाज. फाइन. जो कोल्ड टेम्परेचर वाली जगह होती हैं तो उसमें पिगमेंटेशन की जो प्रोसेस होती है वो कम होती है. मतलब में दे आर क्वाइट फेयर, दे आर फेयर. फाइन. दे डू नॉट हैव पिगमेंटेशन ऑन देयर बॉडी. ऑन द कॉन्ट्रेरी येलो ब्राउन टू रेड इन द एरिड क्लाइमेट्स. एरिड मतलब में ज़्यादा हीट नहीं, ज़्यादा ठंडी नहीं, तो ऐसे क्लाइमेट में येलो ब्राउन टू रेड कलर जितना कलर हो सकता है. और जब हम ब्लैक की बात करेंगे तो वो कहाँ दिखेंगे वैसे ह्यूमंस, तो ह्यूमिड हॉट एरियाज में. फाइन. हॉट एरियाज में ज़्यादातर हमें ब्लैक ह्यूमंस देखने को मिलेंगे. वैसे ही एरिड में येलो ब्राउन टू रेड एंड कोल्डर में विदाउट पिगमेंटेशन वाइट पीपल. फाइन. सो दिस बेसिकली इज नथिंग बट टर्म टू बी एज द ग्लॉजर्स रूल. इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, ग्लॉजर्स रूल. वैसे ही वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं ऑफ कोल्डर एरियाज आर ऑफ लार्जर साइज एज कम्पेयर टू दोज ऑफ द वार्मर एरियाज. फाइन. दिस इज ऑल्सो समथिंग which is based on the temperature, how is it is affecting the temperature. जैसे कि warm blooded जो animals होते हैं कौन से रीजन के, कोल्डर एरियाज़ के. कोल्डर एरियाज़ के जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जैसे कि बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, उनकी साइज़ कैसी होती है, लार्जर होती है एज़ कम्पेयर टू द वार्मर एरियाज. जो वार्मर एरिया में रहने वाले हैं उनसे उनकी साइज़ ज़्यादा होती है. तो इस रूल को हम बोलेंगे बर्गमैन्स रूल. फाइन. इंपॉर्टेंट वन अगेन. फाइन. दिस आर जस्ट टू रिमेंबर. फाइन. एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ द टेम्परेचर पार्ट 2. एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ मैमल्स. जैसे कि हम बात करें तो ऑफ द कोल्डर एरियाज जैसे कि ईयर्स है, स्टाउट है, टेल है, उनके लेग्स जो होते हैं आर शॉर्टर देन द एनिमल्स ऑफ द रीजन. जो मैमल्स की जब हम बात करें तो उनमें जो कोल्डर एरियाज के जो मैमल्स होते हैं. फाइन. सो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोल्डर एरियाज आर शॉर्टर देन द एनिमल्स ऑफ द वार्मर एरियाज. जो कोल्डर एरिया में पाए जाते हैं उनके ईयर्स छोटे होते हैं, उनकी टेल, स्नाउट, लेग्स वगैरह छोटा छोटा होता है एज कंपेरेटिव टू द वार्मर एरियाज. दिस इज देयर इन योर बुक, दैट इज एलेन्स रूल. इस चीज़ को हम बोलेंगे एलेन्स रूल. अब जो लास्ट थिंग है वो है बर्ड्स हैव नैरो विंग्स इन कोल्डर एरिया. जो कोल्ड एरिया में रहने वाले बर्ड्स हैं उनके जो विंग्स होते हैं वो कंपैरेटिवली छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू दोज ऑफ द वार्मर एरियाज. एंड दिस इज टर्म टू बी एज द रैंस रूल. इट इज टर्म टू बी एज द रैंस रूल. Similarly, fish of the colder water tends to hate more vertebrae. So basically, this is something like the fish which survives in the colder water, they do not generally have an liking towards the vertebrates. Fine. So this is nothing but term to be as the Jordan's rule. Fine. So these are some of the rules that you need to remember, and these are some of the examples too which states you how the temperature of a given region affects the types of the organism. Fine. Moving ahead with the next one, that is water. When we talk about water, जैसे कि टेम्परेचर अफेक्ट करता है वैसे वाटर भी अफेक्ट करता है. तो नेक्स्ट टू टेम्परेचर वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म. सबसे पहली कौन सी चीज़ है जो अफेक्ट करती है, तो वो होता है टेम्परेचर. उसके बाद आता है वाटर. फाइन. लाइफ ऑन द अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर एंड इज अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर. वो तो हमें पता है, पहली लाइफ ही वाटर के अंदर प्रोड्यूस हुई थी और पानी के बिना तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. इट इज़ अनसस्टेनेबल. इट्स अवेबिलिटी इज सो लिमिटेड इन डेजर्ट्स दैट ओनली स्पेशल अडेप्टेशन मेक इट्स पॉसिबल फॉर द ऑर्गेनिज्म टू लिव दैट. जैसे कि एग्जाम्पल है ये भी. तो जैसे कि डेजर्ट में पानी कम होता है बट उनकी अडेप्टेशंस की वजह से वो ऑर्गेनिज्म उधर जी सकते हैं. जैसे कि हम एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं इनका, कैमल का एग्जाम्पल दे सकते हैं. तो कैमल जो होता है वो अपने जब भी उनको पानी मिलता है तो वो एक एक महीने तक पानी ना पी तो उन्हें चल सकता है बिकॉज दे कैन रिजर्व द वाटर इनसाइड देयर बेली. फाइन. सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द कैक्टाई. फाइन. तो जब कैक्टाई की बात करते हैं तो जो कैक्टाई के जो लीव्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, उनके जो लीव्स हैं वो थॉर्न्स में कन्वर्ट हो गए हैं. क्यों? अगर
वे लीव्स की तरह रहते तो बहुत सारा इवॉपरेशन हो सकता था, पानी लॉस हो सकता था। देयरफॉर दे हैव कन्वर्टेड देमसेल्व्स इनटू थॉर्न्स। और ये जो स्टेम होती है वो स्टेम कैसी होती है, तो एकदम वैक्सी होती है। फाइन, वैक्सी होती है जिसकी वजह से वाटर का लॉस सबसे कम होता है। बहुत स्टिकी दिखती है हमें, वैक्सी दिखती है, तो उससे वाटर का लॉस कम होता है। तो वही चीज़ है कि भाई अडेप्टेशन करने से क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं अगर पानी ना हो तो डेजर्ट में ना। व्हाट इज अफेक्टेड बाय वाटर इज द प्रोडक्टिविटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट इज ऑल्सो हेविली डिपेंडेंट ऑन वाटर। मतलब में कौन से टाइप के प्लांट हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, मतलब में उसके लीव्स कितने होंगे, वो कितना बड़ा ग्रो होगा, कितनी साइज में ग्रो होगा, दैट इज उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितनी अमाउंट में होगा, सारा कुछ किस पे डिपेंडेंट है, वाटर पे डिपेंडेंट है ऑब्वियसली। फाइन, नाउ there are different this is what we have already studied, this is just for your information that annual rainfall और जो vegetation होता है वो अलग अलग होता है फाइन डिपेंडिंग ऑन द वाटर। तो जैसे कि हमने बात की थी सबसे ज़्यादा पानी होता है तो एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आता है 250 to 400 सेंटीमीटर रेनफॉल जितना, और सबसे कम जो होता है वो होता है डेजर्ट के अंदर। फाइन, इतना आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब तरह तरह के प्लांट्स होते हैं ऑन द टाइप ऑफ द वाटर दैट इज़ अवेलेबल फॉर द यूज़। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोफाइट्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, वैसे प्लांट्स जो सिर्फ पानी में रहते हैं हाइड्रोफाइट्स। मेसोफाइट्स ऐसे प्लांट्स जो होते हैं जो मिड वे भी रह सकते हैं, आधे पानी में आधे मतलब में दे कुड सर्वाइव नॉट टू मच ऑफ वाटर नॉट टू मच ऑफ लैंड, दे नीड बोथ, दैट इज मेसोफाइट्स। एंड जीरोफाइट्स आर द वन विच सर्वाइव्स इन द लैक ऑफ वाटर, दैट इज लैक ऑफ वाटर एज इन लेस अमाउंट ऑफ वाटर, जैसे कि डेजर्ट में जो होते हैं वो। फाइन, now similarly moving ahead with some more information regarding the abiotic component that is water. सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो पानी के अंदर होता है, तो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जिसको कैसे मेजर्ड किया जाता है, मेजर्ड एज सेलिनिटी। कैसे मेजर करते हैं, सेलिनिटी, कितना कॉन्सेंट्रेशन है उसके अंदर सॉल्ट का, इन पार्ट्स पर थाउजेंड, पार्ट्स पर थाउजेंड एज इन थाउजेंड, जो पार्ट्स per thousand, as in the salt concentration is measured in terms of salinity in what, in parts per thousand. Fine, is less than 5 per 1000 parts in inland waters। जो inland पानी होता है, inland waters होता है, उसके अंदर 5 per 1000 से कम होता है, ये समझना बहुत important है। 30 to 35 per 1000 parts in the sea, 30 to 35 per 1000 in the sea, and more than 100 per 1000 parts in the hypersaline lagoons। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जिन जिन पानी के अंदर 5 per 1000 parts से कम सॉल्ट होता है तो वो होता है इनलैंड वाटर्स। फाइन, 30 to 35 पर 1000 पार्ट्स होता है तो वो होता है सी के अंदर, और मोर देन 100 पर 1000 पार्ट्स होता है तो वो होता है हाइपरसलाइन लगून्स। हाइपरसलाइन मतलब में बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट होना लगून्स के अंदर, तो वैसे होते हैं हाइपरसलाइन लगून्स। तो इनलॉन वाटर की जैसे हम बेसिकली बात करें तो जो हमारे लैंड के ऊपर होते हैं, जैसे कि हम रिवर की बात कर ले, फिर पॉन्ड्स की बात कर ले, लेक की बात कर ले, तो उसके अंदर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन 5 पर 1000 पार्ट से कम होता है। और सी की बात करें तो 30 to 35, और हाइपरसलाइन जो बहुत ज़्यादा सॉल्टेड होता है लेगून्स, इसमें 100 पर 1000 से ज़्यादा होता है। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सेलिनिटी को एक्सेप्ट करते उसमें रह सकते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो उसमें नहीं रह सकते, जैसे कि बहुत सारे फिशेस की हम बात करें। फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिजम्स विच आर सर्वाइविंग इन वाटर, द ऑर्गेनिज्म विच आर सर्वाइविंग इन द वाटर, सो सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कुड सर्वाइव survive in the water which has good amount of salt, and some of them are not, that is some are fresh water and some are that is marine water organisms. Fine, some organisms are tolerant to a wide range of salinities, उसको हम बोलेंगे यूरहेलाइन, यूरीहेलाइन जो हमने आगे पढ़ा। फाइन, वैसे ही इधर है यूरीहेलाइन, यूरीथर्मल, वैसे ही है यूरीहेलाइन, जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में रह सकते हैं, ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज़ में रह सकते हैं, ज़्यादा सॉल्ट वाले पानी में भी, कम सॉल्ट वाले पानी में भी, तो उसको बोलेंगे यूरीहेलाइन। एग्जाम्पल है सैल्मन। वैसे ही बहुत सारे होते हैं जो दोज आर रेस्ट्रिक्टेड टू द नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी। फाइन, बहुत ज़्यादा सॉल्टेड पानी में भी नहीं रह सकते, बहुत कम में भी नहीं रह सकते, जैसे कि शार्क। तो यही चीज़ देखनी है कि पानी के अंदर, जैसे हमने बात की, पानी के अंदर सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ये ऑर्गेनिज्म कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। देखो वैसे ही ये जो ज़ेरोफाइट्स हैं, ये जो ज़ेरोफाइट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पानी वाले
वाले एरिया में नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। फाइन, वैसे ही सिमिलरली जब हम हाइड्रोफाइट्स की बात करेंगे तो वे ज़ेरोफाइटिक एरिया में नहीं, ज़ेरो रीजन में नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। वही चीज़ है, ऑर्गेनिज्म भी ऐसे होते हैं, कोई ज़्यादा सैलाइन पानी में रह सकता है, कोई कम सैलाइन पानी में रह सकता है, यूरी हेलाइन एंड स्टेनो हेलाइन। फाइन, many freshwater animals cannot survive for long in sea water and vice versa. Many मराइन वाटर और सी वाटर एनिमल्स कुड नॉट सर्वाइव इन दी फ्रेश वाटर। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको हम लेके फ्रेश वाटर में से सलाइन में डाल दें तो ऑस्मोटिक प्रेशर की चेंज की वजह से वो उधर नहीं रह पाएंगे। वैसे ही बहुत सारे सी वाटर वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको लेके आप फ्रेश वाटर में डाल दो तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से नहीं उधर रह पाएंगे। फाइन, एंड दे वुड फेस द प्रॉब्लम एंड दे वुड इवेंचुअली डाई। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन, दैट इज लाइट। लाइट क्या होती है? लाइट बेसिकली जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, लाइट इज अ विजिबल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो पूरा स्पेक्ट्रम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसमें से जो विजिबल एरिया होता है, जो हमें दिखता है, जिसकी वजह से हमें दिखता है, तो उस जो वेवलेंथ क्या होती है 390 to 740 वाली जो स्पेक्ट्रम में जो पूरी स्पेक्ट्रम होती है, उसमें से जो 390 से लेके 740 नैनोमीटर वाली जो वेवलेंथ वाली जो वेव्स होती हैं उसको हम बोलेंगे लाइट। उसको हम क्या बोलेंगे? लाइट। लाइट इंटेंसिटी, लाइट ड्यूरेशन। इंटेंसिटी मतलब उसकी अमाउंट कितनी है, कितने एरिया में कितनी लाइट हो रही है, तो इसे बोलेंगे इंटेंसिटी। उसका ड्यूरेशन कितने टाइम तक, उसकी क्वालिटी कैसी है, इन्फ्लुएंसेस, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नंबर ऑफ लाइफ प्रोसेसेस को अफेक्ट करती है। बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस हैं जो लाइट पे टिकी हुई है, वो तो हमें पता ही है। लाइट इज़ द सोर्स ऑफ मेन, सनलाइट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। फाइन, वैसे ही उसकी वजह से ही बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही है, तो दिस इज ऑल्सो इवेंचुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर विच अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। समझ लो, लाइट ही नहीं है तो लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं है, प्लांट्स नहीं है तो हम नहीं है, देयर विल बी नो लाइफ ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इवेंचुअली। फाइन, सो बेसिकली कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो लाइट से अफेक्टेड है? फोटोसिंथेसिस, ग्रोथ, ट्रांसपिरेशन, जर्मिनेशन, पिगमेंटेशन, मूवमेंट्स। फाइन, मूवमेंट्स की हम बात करें तो हम देखेंगे जैसे कि फिर डेली रिदम्स इन द एनिमल्स, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है हमारे में, जैसे कि रात के टाइम, सुबह के टाइम, दैट ऑल हैपन्स बिकॉज ऑफ द लाइट, सो दैट इज डेली रिदम इन एनिमल्स। फ्लावरिंग की हम बात करें तो फ्लावरिंग भी वो कैसी एक मूवमेंट है, तो दैट इज अ फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट। फ्लावरिंग क्या है? एक फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट है। मतलब में फोटो पीरियड क्या होता है? रिलेटिव टाइम ऑफ द डे एंड नाइट। कितना टाइम है, जैसे कि विंटर्स होती है तो उसमें फोटो पीरियोडिक टाइम कम हो जाता है, वैसे ही समर में फोटो पीरियोडिक टाइम बढ़ जाता है, तो उसे हम बोलेंगे फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट। तो ये जो फ्लावरिंग होता है उसमें अलग अलग टाइप की फोटो पीरियडिज्म चाहिए। किसी फ्लावर को ब्लूम होने के लिए बहुत सारी क्या चाहिए, जैसे कि फोटो पीरियड चाहिए, किसी को वो विंटर में ब्लूम होते हैं, कोई समर में ब्लूम होते हैं, दैट इज फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट। राइट, जब हम मूवमेंट की बात करेंगे, जैसे कि हम बात करेंगे फॉर्जिंग की, तो फॉर्जिंग की हम बात करें तो दैट इज डायurnal एंड सीजनल वेरिएशंस इन द लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। ये क्या होता है फॉर्जिंग? मतलब में सीजनल वेरिएशन जो होता है लाइट की इंटेंसिटी में, जैसे कि समर में लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और हम बात करें विंटर में तो उसकी इंटेंसिटी कम होती है। फाइन, तो द डायurnal एंड सीजनल चेंजेस इन द लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन एज क्यूज फॉर फॉर्जिंग, वो जो होते हैं वो फॉर्जिंग के लिए क्यूज होते हैं, मूवमेंट के लिए क्यूज होते हैं, इंडिकेशन होते हैं एनिमल्स के लिए। जैसे कि किसी ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट के लिए वो लाइट पे डिपेंडेंट करते हैं। फाइन, कि अब विंटर की सीजन हो गई है तो हमें इधर से दूसरी जगह पे जाके मूव होना है, जैसे कि बहुत सारे बर्ड हिमालय से लेके मूव होके हमारे यहाँ आते हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द विंटर्स दैट हैव स्टार्टेड ओवर देयर। फाइन, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द सीजनल वेरिएशन, डायurnal वेरिएशन इन द लाइट इंटेंसिटी। फाइन, तो फॉर्जिंग बेसिकली क्या होता है? मूवमेंट, दैट इज माइग्रेटरी एक्टिविटीज, मूविंग एक्टिविटीज एंड द रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज। द रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज इज ऑल्सो अफेक्टेड। जैसे कि हम बात करें तो व्हेन वी टॉक अबाउट द डॉग्स, दे रिप्रोड्यूस ड्यूरिंग द विंटर सीजन, सो दैट इज नथिंग बट द लाइट विच इज अफेक्टिंग द रिप्रोडक्शन। फाइन, सो those are the cues for their activities such as reproductive activities, migratory activities and so on. So light बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है। मूवमेंट पे आ गया फॉर्जिंग विच इंक्लूड्स रिप्रोडक्शन एंड माइग्रेटरी एक्टिविटीज। नाउ when we talk about the light, the availability of the light on land is closely linked with that of the temperature. ये तो हमें पता ही है कि लाइट किसे अफेक्ट
क्या करती है, टेम्परेचर को अफेक्ट करती है। ज़्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट मतलब में ज़्यादा हीट, फाइन, ज़्यादा हॉट एरियाज, कम इंटेंसिटी वाली लाइट मतलब में कम हीट, कोल्डर एरिया। सो दैट इज लाइट इज क्लोजली लिंक्ड विद टेम्परेचर, ये हमें पता है। सिंस द सन इज द सोर्स ऑफ बोथ, सन से ही टेम्परेचर ज़्यादा कम होता है और वही लाइट देता है, तो ये चीज़ याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट डीप, जैसे हम बात करें मोर देन 500 मीटर्स, जैसे हम ओशन के नीचे जाते हैं मोर देन 500 मीटर्स, तो एनवायरनमेंट उधर पूरा डार्क होता है एंड इट्स इनहेबिटेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेलेस्टियल सोर्स कॉल्ड द सन। उधर जो ऑर्गेनिज्म होता है उन्हें पता नहीं होता सन जैसी कोई चीज़ है, बिकॉज वो बहुत डीप डाउन रहते हैं। तो उनके अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया है, उनके अंदर जो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है वो क्या होती है। सो बेसिकली द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ऑर्गेनिजम्स विच आर सर्वाइविंग डीप डाउन, फाइन, बेसिकली एल्गे वगैरह हैं या फिर छोटे छोटे बहुत छोटे कोई ऑर्गेनिज्म है और एनिमल ग्रुप है वगैरह, तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है जिनकी वजह से उन्हें एनर्जी मिलती है। केमिकल रिएक्शन वो क्या, कौन सी प्रोसेस करते हैं, केमोसिंथेसिस। केमोसिंथेसिस दैट इज सिंथेसिस ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो वो दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी डीप डाउन वेयर द सन इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी, वेयर द सन इज नॉट एबल टू रीच डीप डाउन, सो उधर होती है केमिकल रिएक्शन जिसको हम बोलेंगे केमोसिंथेसिस। अब जो सन होता है उसकी जो स्पेक्ट्रल क्वालिटी, स्पेक्ट्रम होता है, तो जो सन के रेडिएशंस होते हैं उनके जो स्पेक्ट्रम की बात करें तो स्पेक्ट्रम में होते हैं यूवी लाइट, विजिबल लाइट एंड इंफ्रारेड राइज। तो ये यूवी रेज की हम बात करें तो ये हार्मफुल हो सकता है, ज़्यादा यूवी रेज अर्थ तक नहीं पहुंचनी चाहिए बिकॉज इट कुड बी हार्मफुल टू मेनी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। विजिबल लाइट जो होती हैं, तो विजिबल लाइट कौन सी है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं, तो वो होती है विजिबल लाइट, जो विबग्योर होता है वो। इंफ्रारेड होती है जो यूवी विजिबल से ऊपर की होती है, रेड से ऊपर की, इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो हम बात कर रहे हैं ये जो सोलर के रेडिएशंस होते हैं जिनमें हम कौन सी बात कर रहे हैं, विजिबल की बात कर रहे हैं, फाइन। तो स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। जैसे कि जो नहीं दिख पा रही वो भी ऐसी है, जो विजिबल नहीं है वो भी बहुत सारी ऐसी होती है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, फाइन। ये याद रखना ज़रूरी है। जैसे कि हम बात करते हैं तो हमने वेरियस रेडिएशंस जो होते हैं जिनकी वजह से हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट वर्क कर रहे होते हैं, तो दैट इज़ स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशंस। विजिबल तो है ही हैं जो हमें यूज़ है, पर उसके अलावा जो दूसरी होती हैं अलग अलग, वो भी हमें यूज़फुल रहती है, फाइन। अब एक दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था जैसे कि रेड ग्रीन और ब्लू, रेड ग्रीन और ब्राउन एल्गे जो हैं, तो उनमें से कौन सी एल्गे हैं जो डीप डाउन विद इन द सी पाई जा सकती हैं, तो उसका आंसर होगा रेड एल्गे। क्यों, बिकॉज is found at the deepest spots in the sea, because red algae जो होती हैं उसके अंदर एक पिगमेंट होता है that is phycoerythrin pigment। ये जो phycoerythrin pigment है इसके अंदर ही होता है, सिर्फ red algae में ही होता है, and that has the capacity to absorb the blue green light, that has the capacity to absorb the blue green light, and because of which yes it could produce, it could do the chemosynthesis, fine। जो blue green light होती है वो deep down तक पहुंच सकती है, blue green light जो होती है वो डीप डाउन पहुंच सकती है, और पहुंचने पे सिर्फ इसके अंदर ही ये पिगमेंट है जिसकी वजह से डीप डाउन हमें रेड एल्गे पाई जाती है, फाइन। नाउ यस सर, सो बेसिकली हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे रिगार्डिंग द सॉइल। सो टिल टुडे वी हैव जस्ट कंप्लीटेड द 3 important factors, abiotic factors, that is temperature, water and light. We shall in the coming class study about soil. Thank you.